It was a relationship built in a period when Western democracies used to arm a military dictatorship called Pakistan and deny India defensive weapons. So if we are talking about principles, let's talk a little bit of history out here. Are you reluctant to criticize Moscow? We are an independent country. We do not define ourselves or perceive ourselves in alliance terms. That's very much a Western terminology. It's not a term that we use. We have a relationship with Moscow. We've had a long-term relationship with Moscow. I think it's important to look at that history of the relationship. It was a relationship built in a period when Western democracies used to arm a military dictatorship called Pakistan and deny India defensive weapons. So if we are talking about principles, let's talk a little bit of history out here. So how did the Indian exposure to Russia and previously to Soviet Union get built up? Because the Western democracies, for whatever reason, decided that their natural partner in our part of the world was a military dictator. Would you consider India an ally of Russia? No, I think India doesn't. We are an independent country. We do not define ourselves or perceive ourselves in alliance terms. That's very much a Western terminology. It's not a term that we use. Has managed to reduce its imports while doing it in a manner in which it is comfortable for Europe. Comfortable? It's manageable. It's maybe a little bit of an overstatement. Now, if at 60,000 euros or whatever is your per capita income, you are so caring about your population. I have a population at $2,000. I also need energy. I'm not in a position to pay high prices. The price of oil has doubled. And what Europe is doing is also moving into the Middle East and diverting production out of the Middle East into Europe and raising prices. So European actions actually are putting pressure on the global oil markets and on my imports as well. So I think it's something which, if European political leadership understandably would like to soften the impact on their population, I think it's a privilege they should extend to other political leaderships as well. नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष बिस्वाल आपको मेरे चैनल इंडिया इज ग्रोइंग में स्वागत करता हूं। आज हम एक गर्म टॉपिक पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर एस जयशंकर का करारा जवाब एक फॉरेन मीडिया रिपोर्टर को, जो इंडिया रशियन रिलेशनशिप को लेके डॉक्टर एस जयशंकर को उलझाने की कोशिश कर रहा था। बने रहे वीडियो में, क्योंकि आज हम भारत के पक्ष को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, साल था 2022 का, जब रशिया यूक्रेन की युद्ध एकदम चरम पर थी और इस मौके का फायदा उठाया अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका को एक सुनहरा मौका मिल गया था रशिया को सुपर पावर की गद्दी से हटाने का और अपने आप को एकमात्र दुनिया का राजा घोषित करने का। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा और आपने न्यूज में भी देखा होगा कि कैसे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर रशिया की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की और वो 30-40% कामयाब भी हो गए थे। पर बाकी का परसेंटेज उनके हाथ में नहीं आ रहा था, क्योंकि भारत रशिया के साथ खड़ा हुआ था और वो अभी भी खड़ा है रशिया के साथ। दोस्तों, अमेरिका को लगा था कि भारत रशिया का साथ छोड़ देगा और उसे आसानी हो जाएगी रशिया को वर्ल्ड मैप से हटाने का, पर वो चौंक गया क्योंकि भारत ने रशिया का साथ दिया और अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी। क्योंकि अमेरिका को लगा था अगर भारत, जो कि एक उभरता सुपर पावर है, अगर वो रशिया का साथ देगा तो उन्हें बहुत ही मुश्किल होगी, और ठीक वैसे ही हुआ। आज 2024 है, 2022, 2023 2 साल गुजर गए हैं और आज भी इंडिया रशिया रिलेशनशिप बहुत ही मजबूत हो चुका है। आप में से कईयों को लग रहा होगा कि रशिया, जो इतना बड़ा वॉर क्राइम कर रहा है, दूसरे देश में हमला कर रहा है, भारत उसका साथ क्यों दे रहा है? तो आज मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं। दोस्तों, जब भारत मुश्किल में थी, और मुश्किल यानी मेरा मतलब है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के टाइम पर, तब सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। यहां तक कि अमेरिका भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। वो मॉडर्न वेपन्स, सबमरीन्स, जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान को दे रहे थे और भारत को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे थे।
दोस्तों, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका और कई सारे ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज ने भारत पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी। पर तभी सोवियत यूनियन, जो अब रशिया है, उसने अपने 2 क्रूजर शिप्स और एक सबमरीन जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के साथ था, उसे भारत के बॉर्डर्स पर तैनात कर दिया, जिसके वजह से वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका भारत पर हमला नहीं कर पाए और भारत आज भी जिंदा है। इसका एक मूल रूप रशिया है, जिसने तब हमारा साथ दिया था। अब हम थोड़े रीसेंट टाइम्स में आ जाते हैं। साल था 1988 जुलाई, जब कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज शुरू हो गई थी और ये सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तान से लॉन्च हो रहे थे। पर तब भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और इंडिया को धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान को कश्मीर नहीं देता है तो वो इंडिया को मिटा देंगे। पर तब भी रशिया ने भारत की मदद की मॉडर्न वेपन्स देकर। दोस्तों, ऐसे तो जियोपॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं होता है, क्योंकि हर कोई अपने कंट्री के डेवलपमेंट और फायदे को देखता है। पर इस मौके पर भारत रशिया का फ्रेंडशिप एक बहुत ही बड़ा स्टैंड आउट पॉइंट है, क्योंकि पहले रशिया ने भारत की मदद की और अब जबकि पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो रशिया के साथ खड़ा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो रशिया के वॉर क्राइम्स को सपोर्ट करता है। भारत का एक क्लियर स्टांस है कि हर तरह से जंग को हमें ना करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो इतनी तक और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।